Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new reading passage, that is book 17. It is a general reading and test 2. It's section 1. तो सबसे ये हमारा टॉपिक है want to rent a property. Answer the question 1 to 14. In section 1 you will have to give answer of the 1 to 14 questions, and this passage contains 1 to 5 questions. You can see. Let's go to the questions. What kind of questions are there? Look at the 5 descriptions of rental property agency. Rental property agency, A to E, on page 40. That is the text page number. For which agency are following statement true? Which the write the correct letter A to E in boxes 1 to 5 on your answer sheet. A to E means that this passage contains 5 paragraphs. A, B, C, D, and E. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. You can see these are the 5. Okay, let's go with the first. You can see these are some statements are given as a questions. We will find out these statement in the given passages, in the given paragraphs. You can see we will read out the first paragraph. So I know properties with over 50 years experience. You can say 50-year experience. We offer a comprehensive sales and lettings service. Our team has been based in shipment. You can see our team has been based in Shipment Street since its foundation, and so we have thorough knowledge of the surroundings neighborhood. यानी जब से हमारी ये कंपनी बनी है वो वहीं पे ही है जहाँ पे उसकी बुनियाद बनी थी, जहाँ पे उसको हमने शुरू किया था वहीं पे ही है, एंड दैट इज शिपमेंट स्ट्रीट. सो वी हैव थोरो नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग नेबरहुड, और जो नेबरहुड है उसके बारे में हमारा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है. आवर स्टाफ मेक एवरी एफर्ट ऑफ मैच क्लाइंट्स needs to an appropriate property, whether you are looking a rent an apartment, a bungalow, or a house. Okay, let's go toward the questions. हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. The agency expects customers to provide letters of recommendations. ऐसा कुछ नहीं है. The agency provides certain information on properties held by its competitors. ऐसा भी नहीं है. The agency began its business. You can say the agency began its business in its present location. आपने देखा है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है. Our firm has been based in Shipment Street since its foundation. तो ये ए में है हमारी ये सारी ऑप्शन. तो हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सामने हम ए लिख देंगे. ए लिख देंगे. ठीक है, चलें तो हम बी की तरफ चलते हैं. इसका जो पैराग्राफ बी है उसकी तरफ जो हमारे पास है. Dunsdale. As soon as you walk in the door, we will make every effort to find the right flat for you on rent. Everything we do is based on good practice. Okay, good practice. You supply written reference. जी, आप अपना रिटर्न रेफरेंस दें, अपना हवाला जात दें, नाम पता दें, अपना जो बिजनेस के बारे में है, जॉब के बारे में है वो दें, एंड पे द रेंट ऑन टाइम. रेंट भी ऑन टाइम पे करें. एंड इन रिटर्न, और हम बदले में क्या करेंगे? वी शैल विजिट द प्रॉपर्टी एवरी 4 months टू इंश्योर इट्स मेंटेन्ड एंड दैट एनी नेसेसरी रिपेयर्स आर डन. तो हम मेंटेनेंस और जो कुछ रिपेयर का है वो करेंगे. हर 4 महीने बाद हम चक्कर लगाया करेंगे. तो देखते हैं यहाँ पे. द एजेंसी एक्सपेक्ट्स कस्टमर्स टू प्रोवाइड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन. ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखिएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप बी में देखेंगे तो कहता है यू सप्लाई रिटर्न रेफरेंस. आप रिटर्न रेफरेंस दें, रिटर्न रिकमेंडेशन दें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दें. अब देखें कि ये ए में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बी में दी गई हैं. बी में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, सप्लाई रिटर्न रेफरेंस है. तो यहाँ पे ये बी में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे है द एजेंसी एक्सपेक्ट कस्टमर टू प्रोवाइड रिटर्न. ठीक है जी. तो इसके सामने आप बी ऑप्शन लिख देंगे जी. तो चलिए हम तीसरा जो है हमारा वो सी ऑप्शन पढ़ते हैं. एज अ फैमिली रन बिजनेस. एक तो ये है कि फैमिली रन बिजनेस है.
with over 20 years experience है इसका the property market. We pride ourselves on treating every client with kindness and consideration. The landlords, देखिएगा, landlords on our books have been selected with great care so that you can be sure that they will look after your interest. ठीक है जी, आपने जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं उनको आपने देखते रहना है, अंडरलाइन कर लेना है. थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रिटन टू अस. थाउजेंड ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रिटन टू अस टू एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर दिस सर्विस. चलें तो देखते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, क्वेश्चन है हमारे पास. द एजेंसी प्रोवाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी हेल्ड बाई कंपेटिटर्स का कोई जिक्र नहीं है. एम्प्लॉइज हैव सेलेक्टेड रोल्स एट द एजेंसी नहीं है. एजेंसी केयरफुली चूज द प्रॉपर्टी ओनर्स. देखिएगा ज़रा, द एजेंसी केयरफुली चूज द प्रॉपर्टी ओनर दैट इट लुक्स वर्क्स विद. अगर आप ये देखें, देखिएगा, द लैंडलॉर्ड्स ऑन आवर बुक्स हैव बीन सेलेक्टेड विद ग्रेट केयर. ये देखें, सिंपल सा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सारी सी में दी हुई है. तो ये जो हमारा 5 है इसमें सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन. चलिए तो अब हम डी को पढ़ते हैं. Kasama Latings, our highly experienced team works hard to provide peace of mind for both tenants and landlords. ठीक है जी. जेम्स कैटरिंग, आर कस्टमर लाइसन ऑफिसर. ये देखिए, एक तो टीम का मेंबर है लाइसन ऑफिसर इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द फोन. वो फ़ोन पे रहते हैं क्यूरीज का आंसर करने के लिए. वी ऑल्सो हैव एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर. यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी है. यहाँ पे अगर देखें तो हाईली एक्सपीरियंस टीम का भी जिक्र कर रहा है, फिर यहाँ पे वो ऑफिसर लाइसन ऑफिसर का भी बात कर रहा है, फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की भी बात कर रहा है, हु डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स, रेंट्स एंड पर्सनल क्यूरीज. चलें तो देखते हैं जी. एम्प्लॉइज हैव स्पेसिफिक रोल. ये देखा है आपने, एम्प्लॉइज हैव स्पेसिफिक रोल. एम्प्लॉइज हैं, उनके स्पेसिफिक रोल्स हैं. ठीक है जी. एक तो ऑफिसर आपने देखा एक्सपीरियंस टीम है, लेजन ऑफिसर है जो फ़ोन कॉल अटेंड करता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है जो कॉन्ट्रैक्ट्स, रेंट्स और पर्सनल क्यूरीज जो हैं वो डील करता है. तो अगर आप देखें तो 4 ऑप्शन जो है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन जो है वो डी आ रही है जी. अब तो सिंपली अगर आप देखें तो ई बच रहा है हमारे पास. 4 ऑप्शंस जो हैं वो 4 हो चुकी हैं, जिनमें बी, ए, डी और सी है. तो एक बच रहा है, 2 जो है हमारे पास स्टेटमेंट वो बच रही है. उसके लिए हमारे पास एक ही जो पैराग्राफ है वो बच रहा है, वो है ई का. तो इसके सामने हम पढ़ के ही ई लगाएंगे. ठीक है जी. हो सकता है एक में 2 भी आ जाएं. इसके लिए भी आप हमेशा कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें. While the main objective of some letting agents is get as much money as possible from their properties. हाँ जी, वह कि वो चाहते हैं कि जो लेटिंग एजेंट्स हैं, किराए पे देने वाले जो हैं ना, वो चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके पैसा निकाल लें. We aim to secure a fair deal for tenants and ट्रबल फ्री सर्विस फॉर लैंडलॉर्ड. दोनों के दरमियान एक अच्छा जो ट्रबल फ्री सर्विस है वो प्रोवाइड करें. वी यूज़ मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स. ठीक है जी. दैट इंक्लूड प्राइस कंपैरिजन. जी, एक तो प्राइस कंपैरिजन की बात फॉर सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द अदर एजेंसी, दूसरी एजेंसी के मुकाबले में. अगर देखें यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन भी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी एजेंसी के साथ जो उनका कंपैरिजन है इन द एरिया, सो दैट यू कैन मेक अ फुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन. अगर यहाँ पर भी देखें तो फिर एक ही बचती है, द एजेंसी प्रोवाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय कंपेटिटर्स. ये देखें, कंपैरिजन का जिक्र आ रहा है. ठीक है जी, आपने देखा है. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारी एक ही बचती है और वो ई बचती है. तो इस तरह ये हमारी जो सी स्टेटमेंट्स की जी. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साइकिलाइट्स हैं. आप देख सकते हैं साइकिलाइट्स, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे किस किस्म के क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखते हैं. आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है. क्वेश्चन 6 to 14 है. ओके, लेट्स गो. इट इज़ इलीगल, पहली बात तो ये है, वो कहता है इलीगल टू साइकिल चलाना. साइकिल इज ऑल्सो अ नाउन एंड वर्ब एज वेल. साइकिल्ड एंड साइकिलिंग, इट्स अ रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. आफ्टर सनसेट, यानी सूरज ग्रूब होने के बाद, इट इज़ इलीगल टू
साइकिल आफ्टर सनसेट्स विदाउट बाइक लाइट्स। अगर आपके पास आपकी बाइक पे लाइट्स नहीं है तो सनसेट के बाद साइकिल चलाना जो है वो इलीगल है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव अप्रूव्ड फ्रंट एंड रियर लाइट that are lit, clean and working properly when cycling between sunset and rise। एक तो ये है कि वो कहता है कि अप्रूव्ड फ्रंट और रियर लाइट्स होनी चाहिए जो बैक लाइट्स हैं, और क्लीन होनी चाहिए, वर्किंग प्रॉपरली होनी चाहिए बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। ठीक है जी, सनसेट से लेके सनराइज तक। इट्स नो डिफेंस टू से दैट इट वाज पास्ट सनसेट बट नॉट येट डार्क। ठीक है जी। द लीगल, यहाँ पे लीगल की बात हो रही है। द लीगल लाइटिंग ऑब्लिगेशन फॉर साइक्लिस्ट, जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं लाइटिंग के जो कानूनी फ़राइज़ हैं लाइटिंग के साइकिलिस्ट के लिए, फॉर साइकिलिस्ट आर डिटर्मिन्ड, उनका तयन किया जाता है, वो लागू होते हैं बाय सनसेट एंड सनराइज, सनसेट से लेके सनराइज तक। अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ ही मैच कर रही है। इट इज़ इलीगल टू साइकिल आफ्टर सनसेट विदाउट बाइक लाइट्स। ठीक है जी, ये आपके कानूनी फ़राइज़ में शामिल है और ये इलीगल है अगर आप लाइट्स के बगैर इसको चलाते हैं। तो दूसरा है हमारा फ्रंट एंड रियर लाइट्स। ये बात कर रहा है फ्रंट एंड रियर लाइट्स कैन बी अटैच टू द राइडर। राइडर जो गाड़ी चलाने वाला है, साइकिल चलाने वाला है, उसके फ्रंट और बैक पे लाइट्स जो है ना वो लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं जी कि फ्रंट और रियर पे लगी होनी चाहिए। साइकिलिंग यूके Guide to Cycling Regulations explains the road vehicles lighting regulation in detail. But in summary, you need a white light at the front. जी देखिए, but in summary, you need a front light at the front and red at the rear। ठीक है जी, visible from the front और rear respectively। ठीक है जी, visible from the front एंड रियर रेस्पेक्टिवली, आगे पीछे से नजर आनी चाहिए। एंड फिक्स टू द बाइक, और कहाँ पे फिक्स होनी चाहिए? बाइक के साथ, नॉट राइडर के साथ। यानी वहाँ पे लिखा है कि आपके जो लाइट्स है ना वो कहाँ होनी चाहिए? कैन बी अटैच्ड टू द राइडर। वहाँ पे कह रहा है कि बाइक के साथ होनी चाहिए, तो ये चूंकि कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये फॉल्स होगी। अ टार्च वॉर्न ऑन अ साइक्लिस्ट हेड मस्ट बी वाइट। चलिए तो हम देखते हैं जी कि जो साइक्लिस्ट है वो अपने सर पे कैप पहनता है, या जो वो अपने सर पे हेलमेट पहनता है, टार्च पहनता है उस पर, तो वो उसका कलर वाइट है, ज़रूर वाइट होना चाहिए। अ टॉर्च वॉर्न ऑन अ साइक्लिस्ट हेड मस्ट बी वाइट। जो टार्च होनी चाहिए साइक्लिस्ट के सर पर, उसका कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जी कि यहाँ पे है कहीं पे obscured saddlebag is not legal and neither is a torch on your head। There is nothing to stop you using head torch as an additional light। The regulations also no low flashing lights provide दे फ्लैश बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे तो बज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो उसने पहना हुआ हो हेड पे। ठीक है जी, अ टॉर्च वॉर्न ऑन साइक्लिस्ट हेड मस्ट बी वाइट, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो ये अगर नहीं इन्फॉर्मेशन दी तो वो रॉन्ग होगा। फिर कहता है देर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लैशिंग लाइट्स। हम देखते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शन, कानूनी पाबंदियां हैं फ्लैशिंग लाइट पे। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन है जो है हमारे पास फ्लैशिंग लाइट्स पे। देखते हैं जी, कुछ हैं ऐसी पाबंदियां फ्लैशिंग लाइट्स पे। द रेगुलेशंस, अगर आप देखते हैं, ये देखते हैं हम, द रेगुलेशंस आल्सो नाउ अलाउ फ्लैशिंग लाइट्स। अच्छा, कुछ पाबंदियां हैं, रेगुलेशंस भी हैं। आल्सो नाउ अलाउ फ्लाइट प्रोवाइडेड दे फ्लैश बिटवीन, वो फ्लैश करेंगी बिटवीन कब? 60 एंड 90 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब है कि इस पर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्टर इंक्लूड अ रेड रियर रिफ्लेक्टर एंड 4 एम्बर पैडल रिफ्लेक्टर्स। इसका मतलब है कि इसमें लीगल पाबंदियां हैं। अगर आप देखें फ्लैश लाइट्स के लिए कहता है रिफ्लेक्ट, देर आर सम लीगल रिफ्लेक्शंस ऑन फ्लैश लाइट्स पर कुछ पाबंदियां हैं। द रेगुलेशंस आल्सो नाउ अलाउ फ्लैश लाइट्स प्रोवाइडेड दे फ्लैश बिटवीन, ये उस पर जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस है कि इतनी दफ़ा उन्होंने जो है वो फ्लैश करना है इतनी दफ़ा। इसका मतलब है कि 9th जो है हमारे पास ये वाला
ये है देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रू स्टेटमेंट आ रही है। रिफ्लेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन पैक्स 4। रिफ्लेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन पैक 4। देखते हैं जी, रिफ्लेक्टर्स इन पैक 4 में मिलता है कहीं, ठीक है जी। द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिफ्लेक्टर इंक्लूड अ रेड रियर लाइट रिफ्लेक्टर एंड 4 एम्बर रिफ्लेक्टर्स, ठीक है जी। द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिफ्लेक्टर्स include a red rear reflector and 4 amber pedal reflectors, one at the front and the, अच्छा कहीं पे भी ये नहीं उसने अभी तक लिखा might that a reflector heel strip और ankle band could replace an amber pedal reflector, यहाँ पे नहीं है कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो देखते हैं हम, रिफ्लेक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 4, ठीक है जी। आमतौर पर 4 के पैक्स में अवेलेबल होते हैं, मुयसर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिफ्लेक्टर इंक्लूड अ रेड रियर रिफ्लेक्टर फॉर 4 एम्बर पैडल रिफ्लेक्टर्स, one at the front and one rear. Common sense might suggest that a reflective heel strip or ankle head could replace, and यहाँ पे नहीं, ये जिक्र नहीं किया गया इसका, ये जो 10th है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एनजी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप्स। एक तो ये आपने अंडरलाइन करना है, आर अलाउड, इनकी इजाज़त है, इंस्टेड ऑफ पैडल रिफ्लेक्टर, पैडल रिफ्लेक्टर की जगह रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप्स जो हैं उनकी इजाज़त है। तो चलें हम देखते हैं जी, ऐसा ही है। One at the front and rear of each pedal, common sense might suggest that reflective heel strip, you can see reflective heel strip और एंकल बैंड कुड रिप्लेस, ये जगह ले सकती हैं, उनकी जगह पे कुड रिप्लेस एन एम्बर, ठीक है जी, पैडल रिफ्लेक्टर, ठीक है, वो उनकी जगह ले सकती हैं। कहता है कॉमन सेंस माइट सजेस्ट दैट रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप और एंकल बैंड कुड रिप्लेस, उनको रिप्लेस कर सकती हैं, ठीक है जी, एंड पैडल रिफ्लेक्टर को रिप्लेस कर सकती हैं। आप यहाँ पे देखें कि पैडल रिफ्लेक्टर की जगह पे की बजाय हम रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहता है कि रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप जो है वो पैडल रिफ्लेक्टर की जगह ले सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स आ रही है, ठीक है जी, कि यहाँ कहता है रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप्स आर अलाउड इंस्टेड ऑफ पैडल रिफ्लेक्टर की बजाय रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप्स जो हैं वो आपको इजाज़त, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कॉमन सेंस माइट सजेस्ट दैट रिफ्लेक्टिव हील स्ट्रिप और एंकल बैंड कुड रिप्लेस, इनको रिप्लेस किया जा सकता है इनकी जगह पे, ठीक है जी, बट अनफॉर्चुनेटली दीज डू नॉट मीट द लीगल जी, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मैच नहीं करती, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारा है 12th है द लॉ कंसर्निंग द डिज़ाइन ऑफ पैडल इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। हम देखते हैं जी, द लॉ कंसर्निंग द डिज़ाइन ऑफ पैडल इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, पैडल के बारे में जो कानून है देखते हैं, एन एम्पर, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेट दिस इज़ एन अनोइंग प्रॉब्लम फॉर राइडर्स हु यूज बाइक्स वेयर द फीट आर अटैच्ड टू द पैडल्स एंड कैनॉट स्लिप, ठीक है। These pedals are not designed with enough space, ये देखें जी, these pedals are not designed with enough space, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री ये पोजीशन ले रहा है टू अकोमोडेट रिफ्लेक्टर, ताकि वहाँ पे अकोमोडेट रिफ्लेक्टर को किया जाए, एंड मेक दिस एन एरिया ऑफ लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन इन नीड ऑफ चेंज, और इसको लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वो कहता है द लॉ कंसर्निंग द डिज़ाइन ऑफ पैडल इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो 13th है, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास ये साइकिलिंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज सेफर देन साइकिलिंग एट नाइट। देखते हैं जी, ऐसा ही है कि जो साइकिलिंग है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम जो साइकिल चलाना है वो महफूज है आपका
रात को साइकिल चलाने की निस्बत। चलें तो हम देखते हैं जी, ऐसा ही है कि दिन के वक्त जो साइकिल चलाना है वो रात के वक्त साइकिल चलाने से ज़्यादा महफूज है। तो देखते हैं ऐसा है कि अनलाइक विद अदर व्हीकल्स, lights are not legal requirement for cyclists when there is reduced visibility during the daytime. Although we won't recommend cycling through dense fog without light. यहाँ पे कहीं पे भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। साइकिलिंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज सेफर देन साइकिलिंग एट नाइट टाइम। तो इसका मतलब है कि ये एनजी होगा। चलें तो लास्ट की तरफ चलते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू साइकिल इन डे टाइम फॉग विदाउट लाइट्स। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है साइकिल चलाना डे टाइम फॉग के वक्त बगैर लाइट्स के। यानी बगैर लाइट्स के दिन के वक्त अगर फॉग पड़ी हो तो साइकिल चलाना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। चलें, अनलाइक विद अदर व्हीकल्स लाइट्स आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा देखिएगा, लाइट्स आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर साइकिलिस्ट्स व्हेन देयर इज सीरियसली रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। लाइट्स आर नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट के लिए लाइट्स जो हैं वो कानूनी ज़रूरत नहीं है। व्हेन देयर इज सीरियसली रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, जब बिल्कुल कम विजिबिलिटी हो, कम जो चीज़ें नज़र आती हों, तो उस वक्त भी लाइट्स जो हैं वो ना होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो भी दिन के वक्त। बिल्कुल अगर आप देखें तो वो कहता है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है तो साइकिल चलाना, साइकिल का चलाना इन डे टाइम फॉग विदाउट लाइट। यानी डे टाइम में जब फॉग पड़ी हो तो लाइट्स के बगैर साइकिल चलाना गैर कानूनी है। तो यहाँ क्या कहता है, लाइट्स आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे तो नॉट लीगल रिक्वायरमेंट्स कह रहा है ना, ठीक है जी। तो वहाँ कहता है कि कानून के खिलाफ है, तो इसका मतलब है कि हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। फिर देख लें, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू साइकिल इन डे टाइम फॉग। दिन के वक्त अगर फॉग पड़ी हो, धुंध हो, तो साइकिल चलाना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है विदाउट लाइट्स, और उसके साथ लाइट्स ना हो। यानी बगैर लाइट्स के दिन के वक्त अगर धुंध पड़ी हुई है तो साइकिल चलाना जो है वह कानून के खिलाफ है। तो यहाँ क्या कहता है, लीगल लाइट्स आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर साइकिल व्हेन देयर इज सीरियसली रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट कर रही है। तो आज का ये जो हमारा था, हमारी जो रीडिंग थी, उम्मीद है आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।